尊敬的巴基斯坦外交部长库雷西先生，尊敬的总理卫生事务特别助理索坦先生，各位朋友们，大家下午好。His Excellency Mr. Mahmoud Qureshi, Minister of Foreign Affairs, His Excellency Dr. Faisal Sultan, Special Assistant to Prime Minister on Health, ladies and gentlemen, good afternoon. 今天，中国政府向巴基斯坦捐赠的新冠肺炎疫苗已顺利运抵伊斯兰堡。我非常荣幸地宣布，巴基斯坦是中国政府对外提供疫苗援助的第一个国家。Today, the vaccine donated from Chinese government has arrived in Pakistan. I'm proud to announce that Pakistan is the first country in the world to receive the Chinese government-donated vaccine. 正如两国政府和人民达成的共识，这批疫苗不仅是巴基斯坦民众急需的医疗物资，更重要的是，这是中巴铁杆情谊在新时期的生动体现。I think everyone agree with me that it is not only the vaccine to the people needed in Pakistan, but more importantly, a new manifestation to our unbrotherhood. 习近平主席反复强调，中国新冠肺炎疫苗研发完成并投入使用以后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性做出中国贡献。President Xi has repeatedly said that the Chinese COVID-19 vaccine, once developed and put in use, will be global public goods. China has honored its commitment. Keeping in the huge global need for vaccine in mind, China has lived its best to offer assistance to the support. 中国言必信，行必果。中国牢记全球对疫苗的巨大需求，竭尽所能提供援助的支持。And China has lived its best to offer the assistance and support. 巴基斯坦是我们最亲密的朋友，是中国开展疫苗合作的重点。在此，我要感谢巴基斯坦政府在批准国药疫苗紧急使用授权以及中国康希诺公司3期临床实验中所给予的协助和合作。我们希望接下来有更多的合作，让更多的人从中受益。Pakistan, as our closest friend, is the priority of our cooperation. Here, I would like to appreciate the Pakistan government for its facilitation and cooperation in the approval of the emergency use authorization for Sinopharm vaccines and the phase 3 trial with the Casino Company of China. We expect more cooperation to follow, and more people can benefit from it. 今年是中巴建交70周年，我们的友谊比山高，比海深，比蜜甜，我们为此深感骄傲。当前，两国团结抗疫，互帮互助，双边合作稳步推进，中巴经济走廊高质量发展，两国人民心与心贴得更加紧密。中国将为巴基斯坦疫情防控、经济复苏发展继续贡献力量，为构筑新时代更加紧密的中巴命运共同体不断努力。This year marks the 7th anniversary of the establishment of diplomatic ties between China and Pakistan. We are proud of the friendship that is higher than the mountain, deeper than the sea, sweeter than the honey. Our hearts grow closer in joint fight against the COVID-19 with the great solidarity and the support we have for each other. The steady progress in bilateral cooperation, including the CPEC. China is ready to contribute to Pakistan's pandemic prevention drive, economic recovery, and social development. We are committed to the building of China-Pakistan community of shared future. 谢谢大家 ，Thank you. Thank you. Thank you, Excellency. I would now request the Honorable Foreign Minister from the Ambassador of the People's Republic of China.
Thank you, Excellency. Ladies and gentlemen, I would now request the Honorable Foreign Minister to say a few words. Bismillahirrahmanirrahim. Special Assistant to the Prime Minister on Health, Dr. Faisal Sultan Sahab, Ambassador Long Rong, Ambassador of People's Republic of China, Foreign Secretary, Secretary Health, Government of Pakistan और दीगर सफारतकार जो यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, मुझे ये बताते हुए बेपनाह मुसर्रत हो रही है कि चीन ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ अपनी लाजवाल दोस्ती का अमली मुजाहरा किया है। और ये साल जो हमारी दोस्ती और ताल्लुकात में इसकी अहमियत और भी ज़्यादा इसलिए है कि हमारे सफारती ताल्लुकात को इस साल 7 दहाइयाँ मुकम्मल होने को हैं और इंशाअल्लाह हमारा एक बड़ा वाज़े एक मंसूबा है कि हम इस साल को शायान शान तरीके से मनाएंगे और अपनी ताल्लुकात और अपनी दोस्ती के नए बाब रकम करेंगे। मैं आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से चीन की हुकूमत, ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने न सिर्फ ये कहा कि जिस दिन ये वैक्सीन डेवलप होगी हम इसको पब्लिक गुड के लिए इस्तेमाल करेंगे, लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसका अमली मुज़ाहरा उन्होंने आज कर दिया है और उसका आगाज़ पाकिस्तान से किया है। ये है वो अमली सबूत जो पाकिस्तान चीन की दोस्ती का मज़हर है। मैं चीन के सदर का अपने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा स्टेट काउंसलर वज़ीर ख़ारजा वांगी का, जिनसे मेरी इस वैक्सीन के हसूल के लिए बातचीत जारी थी। दिसंबर में भी उनसे मैंने दरख्वास्त की थी और फिर 21 जनवरी को दोबारा उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई कि चीन पाकिस्तान को ये 5 लाख डोजेज़ जो हैं वो बहसीत एक गिफ्ट के पेश करना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती इस नौइयत की है। और जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जिससे ये साइनोफार्म का ये जो तोहफ़ा है जो मिला है। मैं चीन के वज़ीर ख़ारजा का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ये एक मरतबा फिर इस बात का एतराफ़ करना चाहूँगा कि जिस दिन से हमने कोविड-19 का मुकाबला करने का आगाज़ किया, पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की सरबराही में एक हिकमत अमली अपनाई, NCOC ने अपना काम शुरू किया, हमारी वज़ारत सेहत ने अपना काम शुरू किया, चीन हमारे शाना बशाना खड़ा रहा। और आपके इल्म में है कि जो हमें वहाँ से कुमक आती रही, जो हमारी मदद करते रहे, वो पूरी कौम के सामने है। मैं उस पर भी चीन की हुकूमत का और चीन की आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और चीन के डॉक्टर्स जो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे डॉक्टर्स की उन्होंने रहनुमाई की और अपने तजर्बात हमसे शेयर किए, हमारे लोगों की ट्रेनिंग में उन्होंने जो मदद की वो भी काबिल ज़िक्र है और उसका भी मैं एतराफ़ करना चाहूँगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान एयर फोर्स का, अपने पायलट्स का, जिन्होंने इस जहाज़ को ये ले गए बीजिंग और फौरी तौर पर उसको वापस लेकर आए। 1 मिनट का उन्होंने वहाँ आराम नहीं किया और पाकिस्तान के लोगों की फलाह के लिए, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए ये इन्होंने एक मरतबा फिर खिदमत सर अंजाम दी है। हम पाकिस्तान एयर फोर्स के मोतरफ़ हैं
काबिल फ़ख्र है हमारा ये इदारा। वी आर प्राउड ऑफ यू। जिस तरह आपने पाकिस्तान का दिफा किया था 27 फरवरी को और अपनी सलाहियतों का जो कहते हैं ना मुजाहरा किया था, उस पर भी पूरी कौम आप पर फ़ख्र करती है। और इस किस्म के जो आप जो कारनामे सर अंजाम देते हैं, इस पर भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ये हमारा ताल्लुक़, ये हमारी दोस्ती लाजवाल है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि चीन और पाकिस्तान मिलके एक वैक्सीन के लिए हमने यहाँ तजर्बात का आगाज़ किया था। यहाँ ट्रायल्स हो रहे थे। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब अभी फरमा रहे थे, वो ट्रायल्स जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। कैनसाइनो के नाम से एक वैक्सीन है जो चीन और पाकिस्तान मिलकर जिसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जो इब्तदाई उसकी रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी हौसला अफजा हैं। और खुदा करे अगर इसमें भी हमें कामयाबी मिलती है तो ये पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के हमारे जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बेपनाह रिस्क लेकर कौम की खिदमत की थी, इंसानियत की खिदमत की थी, उनके लिए एक ये हौसला अफजा खबर होगी। और हमारे वो हजरात, हमारे वो बुज़ुर्ग और उम्र रसीदा हजरात जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार भी हैं, हमसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको भी ये इत्मीनान पहुँचेगा कि इंशाअल्लाह अब ये वैक्सीन आ चुकी है और इंशाअल्लाह वो महफूज अपने आप को पाएंगे। तो मैं चीन की हुकूमत का, एम्बेसडर साहब आपका और आवाम का एक मरतबा फिर पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, क्योंकि हमारी जो दोस्ती है ये पीपल सेंट्रिक है, ये सिर्फ सरकार तक महदूद नहीं है। और यही इसकी खूबसूरती है और यही इसकी ताकत है। तो मैं चीन के आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पाक चीज़ दोस्ती जिंदाबाद।